हैबिट्स है, हैबिट्स लगा। सुबह 5 बजे उठो। अब समझो बड़े पिताजी को अच्छा लगता है कि माँ को अच्छा लगता है कि मैंने एक हैबिट लगाई, मैंने संस्कार किया। बच्चे को भगवान के सामने खड़ा रह के बोलने का है कि भगवान मुझे ताकत दो, भगवान मुझे शक्ति दो। अभी वो तो कोई कंप्यूटर है नहीं कि कॉपी पेस्ट कर दिया, उसका तो खुद का दिमाग है। वो सोच रहा है कि भगवान मुझे दो, क्योंकि शायद मेरे पास नहीं है। मुझे ताकत दो क्योंकमेरे पास ताकत नहीं है। और ये बेगिंग की आदत पड़ जाती है। तो इसीलिए शिरडी की बहुत भीड़ बढ़ रही है, बहुत ज्यादा। रोज वहां पे लोग जा रहे हैं हाथ ऐसे हाथ फैला, क्योंकि वो अंदर जाके बैठा है कहीं तो डीप मेमोरी में कि बेग करो भगवान से तो वो तुमको देगा। तो यहां पर आकर के हमको रुकना है, क्योंकि संस्कार ये वर्ड एक्चुअली में पाली भाषा में संखारा बोला जाता है। संखारा, जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे मेमोरी। मेमोरी यानी कि हम जो सिर्फ पाठांतर करते हैं ABCD EFG, वो नहीं, जो प्रैक्टिकल लाइफ में गेंदबाजी करने की मेमोरी, बैटिंग करने की मेमोरी, HR लोगों को हैंडल करने की मेमोरी। सो वो मेमोरी, वो टेक्निक जो हमने अंदर डाला है खुद करके सोच, जो बाहर आएगा कल। तो यस्टरडे के भरोसे पे आज चल रहा है, आज के भरोसे पे कल चलेगा। तो आज हम चेंज करेंगे तो कल को वो ऑटोमेटिकली चलेगा। I'll stop here. This is a small clip. So, India has been working for peace, for world, always in the form of different spiritual leaders, and modern times have come with modern techniques. It's remote control and electricity that has come with the modern times to us, and now we have a new thing called science of memories. This will be working in a faster way for our peace. So let us dedicate it to the whole world. Thank you. For 2-3 minutes, if anybody wants to ask something.
आपल्याला जर काही प्रश्न विचारायचे असतील तर आपण सरांना विचारू शकता. त्यानंतर आजच्या या मीटिंगचे जे स्पॉन्सरच आहेत वासन आय केअर, त्यांचं या ठिकाणी एक छोटंसं प्रेझेंटेशन आहे. तोपर्यंत आपल्याला काही सरांना प्रश्न विचारायचे. So first of all, thank you. It was really wonderful presentation and it opened new avenues in our mind. My question to you is, among all the practices that you have gone through, what did you personally find most effective in keeping you in alpha state of mind? See, that you cannot understand unless you go stepwise. It is something like learning stages in first, second, third, and fourth. Now, in this course also there is going to be one course which will be. See, today we have just got an introduction to this particular topic. So there will be a degree course and there will be a postgraduate degree course. People who are at stress, they will require a baseline information. But people who are actually suffering from depression, now they will need far more information than that. So it is not possible to tell you in such a short time that thing. Yeah, my question is, like, you have been to Vipassana, you have been to Art of Living, like you said, Landmark Forum. Out of all these, did you find anything that worked better among others? Yeah. See, allopathy and Vipassana, combination of these two is most effective. But only Vipassana is not useful because even Osho has said that Vipassana is the meditation of Clark age. So it is not useful in the Jet age. Now I tried to find out why he said that, but he has not given the answer anywhere else. In no book of his, but he has mentioned this, that it is not useful in Jet age. That's what you explained. Yes. So when we connect it with modern medicine and taking that way of thinking, it can be done. Thank you. To maintain a neutral state, does it mean that no input should be taken? No. No input? No. See, understand. If Sachin Tendulkar is standing on the pitch, okay, and a ball is coming to him, when he thinks in his mind that I want to hit the sixer and must hit the sixer, he will be catch out. If he is worried about the ball, his stumps will be gone. Neutral state means doing any work without having any emotion in it, to face the situation as it comes. See, you take your dog for roaming around. He never thinks about what is there on the next corner. वो क्या करेगा कि अगले कॉर्नर में जाके देखेगा, अगर बड़ा कुत्ता है तो वो भाग के आएगा, अगर छोटा कुत्ता है तो झपट जाएगा. लेकिन आदमी का ऐसा नहीं है. आदमी आज की डेट में कल परसों तरसों मेरा, मेरे बच्चों का, उनके बच्चों का, उनके बच्चों का, वो खत्म ही नहीं हो रहा है. स्विस बैंक में कितने भी करोड़ रुपए डाल. So, ये एक गलत चीज, गलत डेफिनेशन बैठ गया अंदर कि प्लेजर का नाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज खत्म करना है, etc. तो once you come to that neutral state, आपका एम्बिशन तो कुछ भी हो सकता है. आप अंबानी के आगे जाओ, no issue about it. इमोशनल मत बनो उसमें. Becoming neutral does not mean to stop. Actually, I am telling you that if you become neutral, you will go far ahead. You will go far ahead. So the clip that we saw of 3 idiots, that boy hanging and committing suicide, would that situation would have been changed? And at what stage it should be realized that he is in such a state? Psychologically, can it be changed? I mean, could it have been changed? 100%. And at what stage it should be realized that he is in such a state of committing suicide? Even 1 second before he hanged himself. Even 1 second before he hanged himself. Even at that time, if you would have sorted out for some kind of knowledge that why this is happening to him. वो हिंदी में बोलते हैं ऐसा कि अगर दिल खोल दिया होता दोस्तों के पास तो खोलना ना पड़ता ऑपरेशन थिएटर के अंदर. तो वो स्टैक करते गया खुद के दिमाग के अंदर rather than talking it out to his friends. ओपन आउट होना बहुत जरूरी. आदमी को एक रास्ता बंद हुआ तो दूसरा रास्ता ऑटोमेटिकली मिल जाता.
सो इवन 1 सेकंड बिफोर अगर उसको वो एक नॉलेज मिलता था कि भाई देयर इज एन अल्टरनेटिव, क्या कुछ नहीं होता 2 साल भी गए मेरी जिंदगी को, कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी फॉर दैट मैटर। एवरीथिंग, आदमी को सिर्फ तिनका चाहिए। जब वो डूब रहा होता है तो उसको क्या चाहिए? सिर्फ तिनका। नहीं, ऐसा नहीं है, नहीं। स्ट्रेस आएगा, उस स्ट्रेस को मैनेज कैसे करना है? नहीं नहीं, आपको वो ऐसा ही है कि भाई आपका स्ट्रेस जो है, समझो आज अभी डे टू डे में अपना काम कर रहे हैं हम लोग, और हमको लग रहा है कि आज के दिन में इतना स्ट्रेस हो गया, तो शाम में जब घर पे जाएंगे तो तुम्हारी वाइफ का भी इतना स्ट्रेस हुआ होगा। तो ऊपर वाले ने एक्चुअली बनाया ऐसे है कि इसने इसका स्ट्रेस कम कर देना और इसने इसका स्ट्रेस कम कर देना, ऐसा एक्चुअली में आइडिया है फंडा उसका इसलिए उसने एडम एंड ईव को बनाया, इसलिए उसने एडम एंड ईव को बनाया। आज की सोसाइटी का एडम एंड ईव घर के अंदर है, हस्बैंड एंड वाइफ। अगर वो खुश रहेंगे तो बच्चे, और बच्चे खुश रहेंगे तो सोसाइटी, सोसाइटी खुश रहेगी तो नेशन, नेशन खुश रहेगा तो वर्ल्ड। तो सारा सब जिम्मेदारी एक्चुअली हस्बैंड वाइफ पे। लेकिन हस्बैंड वाइफ हो क्या रहा है कि दोनों भी इतना स्ट्रेस जब शाम को आ रहे हैं, तो ये कुत्ता स्ट्रेस इसके ऊपर डाल के इसका इतना कर रही है, और ये इसका स्ट्रेस इस पे डाल के इतना कर रही है। कल सुबह वही स्ट्रेस लेकर बाहर निकल रहे हैं, इतना स्ट्रेस लेके, तो वो स्ट्रेस बढ़ते ही जा रहा है। अगर आपको पेन हो रहा है तो पेन के साथ साथ उतना प्लेजर भी तो लेना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये डे टू डे की बात है, ऐसा नहीं कि मैं साल में 1 महीना स्विट्जरलैंड जाऊंगा, टाइम टू टाइम होने। रात को आप बैठे बोलेंगे कि भाई मैं तीनों टाइम को खाने के टाइम खा लूंगा रात को, ऐसा नहीं होता। सुबह दोपहर शाम का खाना ऐसे ही होना चाहिए। तो स्ट्रेस रिलीफ ऐसे ही होना चाहिए, डे टू डे बेसिस पे होना चाहिए। तो अगर वो होगा तो कलेक्ट नहीं होगा, तो दैट इज आपके पर्सनल लाइफ में जो है पीस ऑफ माइंड, ये कौन सा स्टेज आता है, मतलब स्टेज क्या है, हाउ यू रिलेट योरसेल्फ? just to be relaxed like this, just to be completely unconscious about who am I. Is it possible, sir? Yeah, you can see नहीं तो मेरे तो इधर पढ़ना ही है। इतना सारा लोगों के सामने, 4 लोगों के सामने बैठ के, या फिर कुछ ऑडिटोरियम में भी मेरे प्रोग्राम हुए जहाँ पे पैक्ड ऑडिटोरियम है, देन आई डोंट नो व्हाट क्वेश्चन इज गोइंग टू कम। तो उसमें ऐसे बैठ के तो पॉसिबल नहीं है मेरे को। Thank you, sir. Thank you. I'd like to introduce myself.